Let's begin the broadcast with breaking updates coming in from UP's Fatehpur, which is on the edge as members of a fringe organization have vandalized a tomb, claiming that the structure was built on a temple. The district administration has deployed heavy police officials. They're at the spot. Heavy police as well as PAC forces are currently there at the spot. They've also put out barricades around the disputed site to prevent any further unrest. But the visuals on the screen show many people said to be from a fringe outfit barging in and destroying the tomb. In fact, the controversy centers around the structure located in Abu Nagar. My colleagues Sandeep and Adib are joining us on the broadcast. Sandeep, what are the details of what happened? What's the situation there currently? How did it start? Take us through all the details. जैसा कि बताओ कि ये पूरा मामला फतेहपुर जनपद के आबू नगर रड़िया का मामला है, जहां एक मकबरे को लेकर के भाजपा नेता और हिंदू संगठन के लोगों ने विगत 4 दिन पूर्व जहां यहाँ पे पहले से ही यहाँ पे डीएम को एक एप्लीकेशन दे करके ये कहा था कि वो लोग यहाँ पे मकबरे में पहुंच करके इसको मंदिर होने का दावा करके यहाँ पे पूजा पाठ करने का उन्होंने जहाँ दावा किया था, तो वहीं जिला प्रशासन ने यहाँ पे बैरिकेटिंग लगा दी थी। जैसे कि देख सकते हैं कि पूरी बैरिकेटिंग है और यहाँ पे पुलिस फोर्स भी मुस्तैद है, लेकिन ये लोग बड़ी संख्या पर यहाँ पे बीजेपी जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में जहाँ बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोग यहाँ पे पहुंच करके बैरिकेटिंग तोड़ करके ये लोग अंदर प्रवेश हो गए और अंदर प्रवेश होकर के यहाँ पे तोड़फोड़ भी किए। हालांकि प्रशासन ने इन्हें तत्काल किसी तरीके रोक लिया। रोकने के बाद प्रशासन ने इन लोगों सभी को खदेड़ा, तो वहीं प्रशासन ने जहां दोनों पक्षों से वार्तालाप करते हुए जहां उन लोगों से दोनों पक्षों से यही कहा है कि आप लोग यहाँ पे शांति व्यवस्था बरकरार रखिए, किसी भी तरीके का माहौल अगर कोई खराब करता है तो उन लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं डीएम और एसपी ड्रोन कैमरे से बराबर निगरानी बनाए रखे हुए हैं। हालांकि माहौल इस वक्त पूरी तरीके से शांत हो चुका है। प्रशासन चारों तरफ मुस्तैद है, क्योंकि यहाँ पे कई पीएसी सहित यहाँ पे पुलिस फोर्स के जवान यहाँ पे पहले से मुस्तैद कर दिए गए थे। यहाँ पे अब किसी भी तरीके का कोई भी ऐसा माहौल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पुलिस फोर्स ने मकबरे को अपने कब्जे में ले रखा है। जबकि भाजपा जिला अध्यक्ष का ये कहना था कि ये ठाकुर जी का मंदिर है और इस ठाकुर जी का मंदिर होने का उन्होंने दावा किया था, जबकि मुस्लिम समुदाय का ये कहना था कि ये मकबरा है और मकबरा में किसी भी तरीके की अगर कोई भी अगर जनहानि या किसी तोड़फोड़ की जाती है तो उसको लेकर के वो कदापि बर्दाश्त नहीं करेगा। हालांकि दोनों पक्षों में काफी आक्रोश था, लेकिन जिला प्रशासन ने जहां दोनों पक्षों को समझा बुझा करके माहौल को शांत करा दिया। हालांकि इस वक्त देख सकते हैं माहौल पूरी तरीके से शांत है। जी Okay, all right. So that's the situation there currently. Police deployment there already, but fringe group, a lot of members barging in there. Adib is also on the broadcast with us. And Adib, this is very, very shocking, the incident that has come to light. Was it a disputed site? Has this been going on for a long time? We could see there are tens of people who have come there in huge numbers. And the structure was destroyed. What are the details of what is the action that has been initiated? Well, Pratibha, there are some groups who are claiming it that this structure is in fact a temple, and it was first the temple was raised down and then a mosque was constructed over it, and then they gave an application to the district magistrate that they are going to offer prayers and rituals at that particular site. But before that, the local administration prepared for any such incident. They placed several barricades, but the protesters were in large numbers. They stormed through these barricades. They entered the disputed site and they started protesting and raising slogans. And in that time, stone pelting did took place in the Fatehpur district. However, the heavy police force was already in place. They tried to take control, and all the people, those who were protesting in the area, they have been dispersed by the police. Additional forces have been dispatched to Fatehpur district. They are currently monitoring the situation. The DM and SP rank officers are already in Fatehpur. They are monitoring the entire situation, and as of now they have maintained the law and order situation at that particular point. Pratibha. Okay, all right. So these members, the visuals on the screens show you how a mob had entered this area, vandalized a tomb. This is in UP's Fatehpur. They claim that the structure was built on a temple. We have some reactions coming in as well. Let's listen in. देखिए, लाइन ऑर्डर का मामला है, हम लाइन ऑर्डर को मेंटेन करेंगे और कहीं कोई अप्रिय घटना न हो। हर स्थिति में कानून व्यवस्था का हम पालन करेंगे और कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपको लगता है कि ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए जिस तरह से लाइन ऑर्डर को किसी को भी डिस्टर्ब करने की अनुमति नहीं है। मैं स्थानीय प्रशासन से और प्रमुख सचिव से बात करके ही कुछ कह पाऊंगा क्या मामला है। अगर ऐसी घटना उत्तर प्रदेश में हो रही तो निश्चित रूप से उनकी इंटेलिजेंस का एलआईयू का फेल्यूर है ना। अगर इस तरह की मुसलमान की स्थिति होती है तो पहले से एलआईयू और
विजिलेंस के लोग जो है इसके लिए तैयारी करते हैं और प्रशासन को अलर्ट करते हैं। प्रशासन अलर्ट नहीं हुआ है, अलर्ट फेलियर है तो कानून व्यवस्था ध्वस्त है। देखिए जो स्थिति है अंदर, अभी विधानसभा के अंदर भी आज हो क्या रहा था, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ने यही बात रखी कि हम गोरखपुर जा रहे थे, लोगों ने हमारे साथ बदतमीजी की, योगी जी ने जो जवाब दिया उसको लेकर अंदर हंगामा हो रहा। तो ये स्थिति है पूरे प्रदेश की, कानून व्यवस्था ध्वस्त है और पूरी तरह से ये सरकार कानून व्यवस्था कायम करने में असफल है। Sandeep is joining us from the spot. And Sandeep, tell us a little bit about how it all started, on when this movement was started, with many claiming that there was actually a temple underneath. Tell us about the structure, the dispute from both sides. जैसा कि जिस तरीके से यहाँ पे देखा गया, यहाँ पे जो डिस्प्यूट की अगर बात की जाए तो यहाँ पे डिस्प्यूटेड ये पूरा मामला इसलिए था क्योंकि ये मकबरा बताया जा रहा है कि लगभग 150 वर्ष पुराना था। इस मकबरे को लेकर के जहाँ मुस्लिम समुदाय का ये कहना है कि यहाँ पे एक नसीम बाबा थे जो कि यहाँ पे झाड़ फूक का काम करते थे। झाड़ फूक का काम करने के लिए वो यहाँ पे बैठते थे एक मकबरे में, और इस मकबरे की एक चीज ये बताई जा रही कि इस मकबरे में जो कि ये लोग झाड़ फूक करने का काम करते थे। अभी 4 साल पूर्व भी इनकी नसीम बाबा की यहाँ पे मौत हुई थी, उनके पुत्र के द्वारा इसका पूरा देखरेख किया जा रहा था। वहीं इस मकबरे को लेकर के जहाँ उनका ये कहना था कि ये मकबरा उनका है और वो लोग यहाँ पे इस मकबरे की देखरेख कर रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन के द्वारा इसको अभी ना तो वो मंदिर के पक्ष में है और ना ही मकबरे के पक्ष में है, क्योंकि इस जगह पे 2-3 चीजें देखी जा रही। क्योंकि जिला प्रशासन का ये मानना है क्योंकि ये शहर का पास इलाका है, इस पास इलाके को होने के बावजूद यहाँ पे किसी भी तरीके के माहौल को क्रिएट, कोई भी अगर कोई कुछ भी करता है या किसी तरीके का माहौल बिगाड़ने का प्रयास करता है तो उन लोगों पे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन पुलिस फोर्स यहाँ पे पहले से मुस्तैद है। वहीं डीएम ने हालांकि इस पूरे मामले को पूरी तरीके से स्पष्ट कर दिया है कि कल दोनों समुदाय के लोगों के साथ बैठ करके वार्ता की गई थी और उन लोगों से अपील भी की गई थी कि किसी भी तरीके का कोई माहौल नहीं बिगाड़ेगा। लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ लोगों के द्वारा यहाँ पे शरारत करने का प्रयास किया गया, लेकिन प्रशासन की सख्ती के देखते हुए प्रशासन ने उसको हमेशा उन लोगों की मानसिकता को पूरी तरीके से नाकाम कर दिया। वहीं कुछ जगहों पे कुछ ऐसे गलत चीजें भी वहां पे पाई गई थी, उसको भी पुलिस ने अपने कब्जे पे लेकर के पूरे मामले पे जांच पड़ताल कर कार्रवाई की बात कर रही थी। तो वहीं एसपी अनूप सिंह का ये कहना रहा कि यहाँ पे ड्रोन कैमरे से निगरानी की गई है और जो लोग यहाँ पे शरारत करने के प्रयास करते हैं उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ओके, ऑलराइट। संदीप, क्या आप वहाँ की तस्वीरें हमें दिखा सकते हैं? What's the situation there currently? We can see in your frame there are some police officials who have been deployed there as well. मैं चाहूंगा कि यहाँ पे पुलिस फोर्स को दिखाया जाए किस तरीके से ये मकबरा है, और इस मकबरे को दिखाने के साथ साथ मैं यहाँ पे भीड़ को भी दिखाना चाहूंगी। यहाँ पे जो कुछ जगह पे भीड़ तो है, कुछ लोग छतों पे बैठे हुए हैं। पुलिस फोर्स यहाँ पे ऑलरेडी छत पे मुस्तैद है, उस छत पे भी मुस्तैद है। पुलिस फोर्स को भी मैं कहूंगा कि वहां पे भी दिखाने का प्रयास किया जाए, क्योंकि पुलिस फोर्स ने यहाँ पे पैनी नजर इसलिए बना रखी थी क्योंकि दोनों समुदाय के लोग वहां पे एकत्र हो रहे थे। हालांकि अभी भी देखा जा रहा है कि अभी भी कुछ लोग जैसे आ रहे हैं तो पुलिस उनको समझाने के लिए वहां पे पहुंचती, क्योंकि डीएम और एसपी यहाँ पे पैनी नजर बनाए हुए हैं। उन लोगों से यही यहाँ पे अपील कर रहे हैं कि वो लोग किसी भी तरीके का माहौल ना बिगाड़ें, क्योंकि माहौल बिगाड़ने से देखिए आप ही लोगों का नुकसान होगा। हालांकि वो लोगों का यही कहना है कि कोई किसी भी गलत व्यक्ति के बहकावे में बिल्कुल भी ना है, क्योंकि गलत व्यक्ति के अगर बहकावे में अगर आप लोग आ रहे हैं तो इस पे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं यहाँ पे बताया जा रहा है कि कमिश्नर और यहाँ पे आईजी और एडीजी भी यहाँ पे पहुंच रहे हैं। जी, ओके, ऑलराइट। सो द टॉप कॉप्स आर गोइंग टू बी coming there in just a few moments from now. Sandeep, stay with us. I'll come back to you in just a moment. But look at these visuals. Mob running amok with flags in their hands. They could be seen barging in, and now a tense situation prevails in Fatehpur. A tomb being attacked by this mob, claiming that there is a temple underneath. So the mob actually entered Fatehpur, claiming the structure was built on a temple. Now the district administration has deployed heavy police and PSC forces across the area. In fact, we have political reactions also that have started coming in already. You saw the visuals, very, very shocking visuals of the mob entering the tomb and attempting to attack it and destroy it. Police officials also seen there. They've now brought the situation under control. IP Singh has taken to social media. The Samajwadi Party leader says the tomb is being called a temple. The Yogi BJP government wants to plunge the country into the fire of riots. Hindu organizations have launched an attack on the tomb. This is in Fatehpur of Uttar Pradesh. So accusing the BJP of fanning the fires. The Samajwadi Party leader says that it is the BJP to blame for such incidents that have taken place, and he has said that there could be riots that could take place as well. So a lot of concerns over the situation there currently, although police deployment has been increased. Take a look at what happened. So look at these visuals. This is the moment when the mob entered the tomb. Now,
heavily protected area. The police officials now the police presence has now been increased in the area, but the visuals show how the attack had taken place. The mob entered, vandalized the tomb. This is in Fatehpur, and they have claimed that this is a disputed structure. Now, this is a tomb. They claim that they want to conduct puja there. They said that the structure was disputed. They said that it was built on a temple.